Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have discussed about some sexually transmitted diseases. In this video, we are going to read about the contraceptive methods. Okay, so let's start. Students, we know that the sexual act always has the potential to lead the pregnancy, means it can result in the pregnancy, and pregnancy makes major demands on the body and the mind of the woman. Okay, and that is why reproductive health is very important, as we have discussed in our last video. So if a woman is not ready for this, that pregnancy, her health will be adversely affected. Adverse effect उसके body पर होगा, health पर, है ना. And therefore there are many ways have been devised to avoid the pregnancy. Okay, now these methods are known as contraceptive methods. इनको contraceptive methods कहा जाता है. Because what is contraception? Contraception means the methods or the devices of birth control which prevents the fertilization. Actually इसमें fertilization को रोका जाता है इन methods से, है ना. So it is known as contraception. So contraceptive methods have been devised to avoid the pregnancy and to control the childbirth. These methods are generally adopted to prevent unwanted conception. Unwanted जो pregnancy होती है उसके लिए, एंड टू हैव द सफिशिएंट गैप बिटवीन द सक्सेसिव बर्थ. हमने देखा है फैमिली में, दूसरी फैमिलीज़ में, अपनी फैमिली में आपने देखा होगा, दो जो बच्चे होते हैं, सक्सेसिव जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके बीच में कुछ टाइम का गैप होता है, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, दीज आर वेरी मच यूजफुल to prevent the unwanted pregnancy and also to have the sufficient gap between the successive births. Okay, now let's see what are the contraceptive methods fall in different categories. कौन कौन सी इनकी categories है वो हम देखते हैं. So first one is mechanical barrier method. first हम पढ़ेंगे mechanical barrier method. मैकेनिकल बैरियर मेथड. अब इसमें क्या होता है मैकेनिकल बैरियर, आपको नाम से इसका थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा. सो दिस मेथड प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग टू द वजाइना. फॉर दिस फिजिकल डिवाइसेस आर यूज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं इसमें जिससे कि स्पर्म की एंट्री जो है वो नहीं हो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. और वो जो डिवाइसेस होते हैं उसमें से एक है कंडोम, एंड दीज आर यूज्ड बाय मेल्स. ओके, सो दीज आर यूज्ड बाय मेल टू कवर द पेनिस. पेनिस जो कि स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए यूज़ होने वाला एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन मेल्स. So these condoms are used to cover the penis. So it is a simple and very effective way, and there are no side effects of using condoms. It stops pregnancy by preventing the deposition of semen in the vagina. इस कवर की वजह से जो सीमेन होता है इन पेनिस जो इजैकुलेट होता है, वो सीमेन जो है वजाइना के अंदर उसकी एंट्री नहीं हो पाती है, एंड दैट्स वाई स्पर्म जो है दे कैन नॉट रीच टू द वजाइना. ओके, सिमिलर कवरिंग्स आर ऑल्सो वर्न इन द वजाइना फॉर दिस सेम पर्पज, एंड दे आर कॉल्ड फेमिडोम्स. जो फीमेल वेयर करती हैं दीज कंडोम्स, दे आर नोन एज फेमिडोम. ओके, so this is a mechanical barrier method of contraception. Okay, then come to the next.
नेक्स्ट जो मेथड है इट इज़ केमिकल मेथड, सेकेंड वन chemical method. Now in this method mostly change of the hormonal balance होता है body के अंदर. So these methods change the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है बाय दिस हार्मोन्स. ओके, तो हार्मोनल बैलेंस जो है बॉडी का वो चेंज कर दिया जाता है. सो दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स. पिल्स के फॉर्म में इनको ओरली लिया जाता है. ओके, ओरल पिल्स आर मेनली हार्मोनल प्रिपरेशंस होते हैं. दे कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है. And this prevent the development of egg and the ovulation by inhibiting the secretion of FSH, follicle stimulating hormone. Okay. Oral pills can cause some side effects too. Oral pills जो होते हैं इस केमिकल मेथड में, तो वो जो पिल्स है अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक लिए जाते हैं तो इट कैन शो एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी. साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं. देन अनदर वे जो है केमिकल मेथड में वो है यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स. यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स. ओके, सो व्हाट आर स्पर्मिसाइड्स? दीज आर द केमिकल्स in the form of cream or jellies and they kill the sperms and that's why they are known as spermicides. Okay, so this is chemical method. Then third जो मेथड है इट इज़ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. इंट्रा यूटेराइन contraceptive devices. They are known as IUCD. IUCD, contraceptive devices. Okay, intrauterine. Means they are implanted inside the uterus. That's why they are known as intrauterine devices. Now ये जो devices है they are made up of copper, plastic और stainless steel से बने होते हैं. These are loop और copper टी के शेप में होते हैं या फिर लूप के शेप में होते हैं. एंड दीज आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. एंड इट इज़ डन बाय दिस इम्प्लांटेशन इज डन बाय अ स्किल्ड नर्स और अ डॉक्टर. दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स. इसको यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है. तो इट कैन कॉज इरिटेशन टू द यूट्रस में इरिटेशन हो सकता है. इट मे कॉज ब्लीडिंग एंड डिस्कम्फर्ट ऑल्सो. कॉपर टी जो है इट कैन बी प्लेस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स अप टू 5 years तक इसको प्लेस किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. देन नंबर 4 जो है इट इज़ सर्जिकल मेथड. फोर्थ जो है सर्जिकल मेथड. अब सर्जिकल वर्ड से आप समझ गए होंगे थ्रू द सर्जरी. ओके, सो इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड. हमने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़े हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो यू नो व्हाट इज वास्ट डिफरेंस. सो इफ द वास्ट डिफरेंस in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. And sperm का जो transfer है वो prevent हो सकता है. And if the fallopian tube in the female is blocked, then egg will not be able to reach the uterus. Okay, and in both the cases fertilization will not occur. fertilization नहीं होगा अगर vas deferens block कर दिया जाए या फिर fallopian tube block कर दिया जाए male and female. Okay, so these surgical methods कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स. तो ऐसे जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए सर्जिकल मेथड्स यूज़ किया जाता है. सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन. दे आर सेफ लॉन्ग रन के लिए ये सेफ होते हैं. बट दे मे कॉज इन्फेक्शंस एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म्ड
प्रॉपरली, अगर प्रॉपर वे में ये जो सर्जरीज है वो नहीं किए गए तो इट मे कॉज इन्फेक्शंस और दूसरे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नाउ इन दिस सर्जिकल मेथड्स देर आर टू मेथड्स अगेन. फर्स्ट वन इज वैसेक्टॉमी. देखते हैं वैसेक्टॉमी क्या है. Vasectomy. It involves the removal of a small portion of the vas deferens, जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, जहाँ से स्पर्म जो है वो मूव करते हैं. सो वास डिफरेंस का छोटा सा जो पोर्शन है इट इज़ रिमूव बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द टू कट एंड्स देन टाइड विद द थ्रेड्स. सपोज ये है, इसको कट किया जाता है 2 पीसेस में और फिर इनको ये दोनों पीसेस जो है यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन निकालने के बाद इन दोनों पीसेस को वापस जो है टाई कर दिया जाता है. ओके, सो दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट. इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स है इस डक्ट से बाहर नहीं आते हैं. एंड इट इज़ डन इन द मेल्स. वेसेक्टॉमी जो है वो मेल्स में होता है. ओके, देन नेक्स्ट जो है वो ट्यूबेक्टॉमी. Tubectomy. It is performed in the females. This surgical method or we can say operation is performed in the females and it involves removal of a small portion of fallopian tube. Males में हमने देखा था vas deferens and in females जो fallopian tube होती है उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो रिमूव किया जाता है and again the two ends of this tube they are tied with threads. सो इट प्रिवेंट्स द एग टू एंटर द फैलोपियन ट्यूब. इसमें क्या होता है कि एग जो है इट विल नॉट एंटर इन द फैलोपियन ट्यूब. सो दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी एंड इट इज परफॉर्म इन द फीमेल्स. ओके, सो दीज आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. हमने 4 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े जिसमें मैकेनिकल बैरियर, केमिकल मेथड एंड देन वी हैव सीन द सर्जिकल मेथड्स. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव सीन intrauterine contraceptive devices. Okay, now here I will talk about the surgery. Okay, so surgery can also be used for removal of unwanted pregnancies. तो unwanted जो pregnancies होती हैं उनको remove करने के लिए भी surgeries जो है वो use होती है. सर्जरी के थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता है एंड इट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन. इसको हम कहते हैं एबॉर्शन. अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करना, एबॉर्शन. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज MTP. MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ pregnancy. Abortion or MTP, medical termination of pregnancy. Now this method is widely used, misused by people who do not want a particular child, as happens in the illegal sex selective abortion of female fetus. Female fetus का जो illegal sex selection होता है by sonography, जो क्लिनिक्स में या फिर जो भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इजीली हो जाता है, बट इट इज़ इलीगल. वो इलीगल होता है ना. एंड टिल नाउ मेनी पीपल आर मिस यूजिंग दिस मेथड कि जो वुमेन है वो कौन से सेक्स का चाइल्ड जो है वो बेयर कर रही है, वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और वेदर इट इज़ अ बॉय चाइल्ड. ओके, मेल और फीमेल. तो ये तो बैन हो गया है. वैसे गवर्नमेंट ने इस तरह के जो चेकअप्स होते हैं उसको बैन करके रखा है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन इलीगली इन सम प्लेसेस. फॉर अ हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो जो होता है इट मस्ट बी मेंटेन. फीमेल और मेल्स जो होते हैं किसी सोसाइटी में उसका जो बैलेंस होता है, उसका जो रेशो होता है वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेकलेस फीमेल फिटिसाइड, रेकलेस मीन्स जो विदाउट एनी थिंकिंग, जो फीमेल फिटिसाइड जिसको बोलते हैं. फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है टू किल अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम, है ना, फीमेल फिटिसाइड. सो दिस फीमेल फिटिसाइड यानी कि किलिंग ऑफ फीमेल गर्ल चाइल्ड इन द वोम, फीमेल फिटिसाइड, गर्ल चाइल्ड को
जो है वोम के अंदर यानी कि गर्भ के अंदर ही उसको किल कर दिया जाता है। सो दिस फीमेल फिटिसाइड की वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हो जाता है। इट गेट डिक्लाइन एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर कंट्री। मेनली जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, उसमें कुछ स्टेट्स में ये जो रेशो है मेल एंड फीमेल चाइल्ड का वो डिक्लाइन हुआ है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ जो है जिसको हम कहते हैं कि ये बैन है। पेरेंटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको बैन किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसको अलाउ नहीं किया गया है। इट इज़ इलीगल, इलीगल उसको माना गया है। देन व्हाट इज़ बर्थ रेट एंड व्हाट इज़ डेथ रेट, ये हम देखते हैं। द बर्थ रेट इन अ प्लेस इज़ द नंबर ऑफ बेबीज born there for every 1000 people during a particular period of time। किसी particular period of time के अंदर at a particular place how many babies are born for every 1000 people, है ना। 1000 लोगों का अगर पॉपुलेशन है तो वहाँ कितने बेबीज जो है वो उनका बर्थ होता है, तो दिस इज नोन एज बर्थ रेट। देन व्हाट इज डेथ रेट, बर्थ रेट हमने अभी देखा, birth rate, then what is death rate, let's see। Death rate, the death rate is the number of people per 1000 who die in a particular area during a particular period of time, उसको हम कहते हैं death rate। okay, so it is the number of people per 1000 people who die in a particular area during a particular period of time, this is known as death rate। so birth rate and death rate। देन फीमेल फिटिसाइड मैंने आपको पहले बता ही दिया है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। नाउ वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, है ना। रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉपुलेशंस में इंक्रीज होता है ऑर्गेनिजम्स के, एंड द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन डिटरमाइन इट्स साइज। और उस पॉपुलेशन का जो डेथ रेट और बर्थ रेट होता है वो उस पॉपुलेशन का साइज जो है उसको डिटरमाइन करता है, वो डिसाइड करता है। नाउ व्हाई द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ कॉज फॉर कंसर्न, साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, it is important because an expanding population makes it harder to improve everybody's standard of living। जितना ज़्यादा population होगा the demands will be more and the supply will be less, है ना। increasing population के साथ demands बढ़ती है और demands के साथ supply जो है वो कम होता जाता है and it is very difficult to maintain the living standard of everyone, so it has also adverse effect on the population, or we can say living standard of the people, and that's why the size of the human population is a cause for concern, means we have to think over it and we have to take steps for it। okay, so here we have finished the 8th chapter, that is reproduction, how do organisms reproduce। और इनके जितने भी सारे वीडियोस हैं हमने कोशिश की है कि पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाए। और हमने स्टार्ट किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, देन वी हैव कंप्लीटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्लांट्स का भी पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स का भी पढ़ा है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो, एंड देन वी हैव सीन सम sexually transmitted diseases and the contraceptive methods to avoid the pregnancy। okay, so here we have finished the full chapter। if you will see all the videos, एक कंटिन्यूएशन में अगर आप सारे वीडियोस देखते हो तो आपको पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन उसमें हो जाएगा। सो अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, and also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos। okay, so we will meet again very soon with a new video of next chapter। till then, take care, bye bye।